Hello dear students, so we proceed with our next topic of chapter number 11, that is supply curve and its slope. Supply curve is a graphic presentation of supply schedule showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity. Supply curve क्या होता है? When you are having a schedule, जब आपके पास supply schedule और table है जिसमें कि अलग अलग quantities offer है for sale at different possible prices, उसका curve, that is the supply curve. एंड इट शोज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. तो कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में. एज यू ऑल आर फैमिलियर, इफ देर इज अ हायर प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड विल बी more. Okay, and at a low price the quantity supplied will be less, so there is a positive relation between price and its quantity supplied. And supply curve has two aspects: individual supply curve and market supply curve. Individual supply curve, it is a graphic presentation or supply schedule of an individual firm in the market. कहते कि ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, देखो सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन किसकी? सप्लाई शेड्यूल की ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट. Sloping upward, it indicates that there is a positive relation between the price of a commodity and its quantity supplied. We are having a curve on x-axis and y-axis. On x-axis, we are having a quantity supplied. On y-axis, we are having a price, and we are having this individual supply curve. So S curve has a positive slope showing that quantity supplied increases with increase in price on price of a commodity and decreases with response to the decrease in on price of the commodity. Next, we are having the market supply curve. Market supply curve is a graphic presentation of market supply schedule. It is a supply curve of the industry as a whole. कहते हैं ये graphic presentation है market supply schedule का, ये supply curve है industry का as a whole. It is a horizontal summation of supply curve of all the firms in the industry. तो कहते हैं हम क्या करते हैं, हम supply curve draw करते हैं इंडस्ट्री का as a whole. तो कहते हैं ये जितने भी supply curve हैं अलग अलग firm की, उनकी horizontal summation है. जब add करते हैं उनको, then we are having the market supply curve. It shows the positive relation between the price and quantity supplied of a commodity. और कहते हैं ये क्या show करते हैं? Positive relationship show करते हैं price and quantity supplied of a commodity. As I told you about the supply schedule earlier, तो उसमें मैंने एक टेबल ड्रॉ किया था firm A and firm B. That points are plotted and we are having the curve. A supply curve. On x-axis we are having QX, on y-axis we are having PX. While plotting that points, we are having this curve. And we are having the quantity supplied of firm B. QX and PX is over there, and we are having the supply curve of B. And after adding these both, first देखो 10 है, price is 10. 10 price पे कितनी आएंगे? 10 and 5, that is 15. So 15 is over here. See the quantity supplied, here 10, here 5. Total market supply is 15. Next is 20 and 10, that is 30. Next is 30 plus 15, that is 45. So after adding the quantity supplied of both firm A and B, we are having this market supply curve. Next, we are having the slope of supply curve. Supply curve normally slopes upward, indicating a positive relation between price of a commodity and its quantity supplied. कहते हैं कि जो supply curve है ये हमेशा upward sloping होता है और ये हमें क्या बताता है? एक पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. इट शोज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो कहते हैं ये हमें क्या बताता है? देखो रेशियो बता रहा है किसकी? प्राइस की, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दोनों की. स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज एस्टिमेटेड एट. स्लोप कैसे निकालते हैं सप्लाई कर्व की? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. इट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. It shows that the rate at which the price of a commodity changes corresponding to a unit change in the quantity supplied. कहते हैं इससे हमें ये पता चलता है स्लोप से कि प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी का चेंज हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में. और जो रेशियो है चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्या, वो क्या है? कांस्टेंट है सारे पॉइंट्स पे और एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, सप्लाई कर्व बनता है. इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड इट शोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. कहते हैं जो स्लोप होती है वो स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व की कांस्टेंट होती है क्योंकि एक लीनियर रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का. एंड मोर ओवर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड.
Next, we are having the fourth topic, that is the supply function or determinants of supply. Supply function studies the functional relationship between the supply of a commodity and its various determinants. Supply function का मतलब होता है functional relationship. A functional relationship किन के बीच में है? Supply of a commodity और उसके other determinants के बीच में. The supply of a commodity mainly depends upon its price. कहते हैं supply mainly किस पे depend करती है? उसके price पे depend करती है. The other determinants are as follows. बट इसके अलावा भी कहते हैं बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस के अलावा भी जो इफेक्ट करते हैं सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी को. नंबर वन, वी आर हैविंग ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. इट मीन्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड. कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी सप्लाइड. प्राइस ज़्यादा होगा, क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होगी. लोअर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड. अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? कम होगी. नेक्स्ट, वी आर हैविंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सप्लाई ऑफ अ गुड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. कहते हैं कि किसी भी गुड की सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करती है. कंसीडर्ड अ फर्म सेलिंग टी. कहते हैं अगर हम किसी भी फर्म को कंसीडर करें जो कि टी सेल कर रही है, अगर प्राइस कॉफ़ी का बढ़ गया, देखो कॉफ़ी का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, ओके, एंड व्हाट इज अबाउट दैट टी? द फर्म विल विलिंग टू सेल लेस टी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस. वो टी को क्या करेंगे? कम बेचेंगे. क्यों सप्लाई कम करेंगे? बिकॉज उनको किस पे बेनिफिट है? उनको कॉफ़ी की सेल पे ज़्यादा बेनिफिट है. द सेम क्वांटिटी ऑफ टी विल बी सोल्ड ओनली एट अ हायर प्राइस. और कहते हैं वो क्वांटिटी बेचनी भी है उन्होंने, तो वो टी की क्वांटिटी पे क्या बेचेंगे? ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे. ओके, सो कंसीडर अ फर्म सेलिंग टी इफ द प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी राइजेस. अगर प्राइस कॉफ़ी का बढ़ जाता है, द फर्म इज विलिंग टू सेल लेस टी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस. अगर उन्होंने ज़्यादा टी, मोर टी बेचनी है तो वो किस पे बेचेंगे? एट हायर प्राइस. Next, we are having the number of firms in the industry. Market supply of a commodity depends upon number of firms in the industry. कहते जो मार्केट सप्लाई है वो डिपेंड करती है कि कितनी फर्म्स हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री की. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स. अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती हैं तो इससे क्या होता है? मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है. अगर नंबर ऑफ फर्म्स क्या है? डिक्रीज हो रही हैं, तो इससे क्या होगा? मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. नेक्स्ट, वी आर हैविंग अ गोल ऑफ अ फर्म. इफ द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. कहते हैं अगर किसी भी फर्म का गोल मेनली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो कहते हैं मोर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट अ हायर प्राइस. तो वो क्या करते हैं? ज़्यादा क्वांटिटी को ऑफर करते हैं हायर प्राइस पे. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज सेल्स. अगर कहते हैं उनका गोल ये है कि हमने सेल को मैक्सिमाइज करना है, देन मोर विल बी सप्लाइड एट अ सेम प्राइस. तो कहते हैं वो ज़्यादा सप्लाई कर देंगे सेम प्राइस पे. नेक्स्ट पॉइंट, वी आर हैविंग द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Supply of a commodity is also affected by the price of factors used for the production of the commodity. कहते हैं सप्लाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी की किससे अफेक्टेड है? प्राइस ऑफ फैक्टर से, जो कि हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं. इफ़ द फैक्टर प्राइस डिक्रीजेस, कहते हैं अगर फैक्टर प्राइस कम हो रहा है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अकॉर्डिंगली मोर ऑफ अ कमोडिटी इज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस. और ज़्यादा कमोडिटी सप्लाई करेंगे एक एग्जिस्टिंग प्राइस पे. कन्वर्सली कहते हैं अगर फैक्टर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. इन सच अ केस लेस ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस. उस केस में हम लेस क्वांटिटी सप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग प्राइस पे. नेक्स्ट, वी आर हैविंग द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. कहते हैं अगर कभी भी हमने इम्प्रूव करी टेक्निक तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है. कॉन्सिक्वेंटली हम ज़्यादा गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं एज इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस. नेक्स्ट, वी आर हैविंग द पॉइंट एक्सपेक्टेड फ्यूचर राइज. इफ़ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू राइज इन द नियर फ्यूचर. कहते हैं अगर प्रोड्यूसर ये एक्सपेक्ट करता है कि हमने प्राइस को राइज करना है नियर फ्यूचर में, तो करंट सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. इफ़ ऑन द अदर हैंड फॉल इन द प्राइस इज एक्सपेक्टेड. अगर हमें पता है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो फॉल होने वाला है, सो करंट सप्लाई विल बी इंक्रीज. तो वो क्या करते हैं? उसके पर्टिकुलर रेट पे ही ज़्यादा सप्लाई करता है प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए. आई रिपीट दिस पॉइंट. अगर प्रोड्यूसर को पता है कि इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज वो उसकी सप्लाई कम करेगा ये सोचकर कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तब बेचूंगा.
और ऑन द अदर हैंड अगर उसको पता है कि प्राइस कम होने वाला है, तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा क्योंकि उसको ये डर है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं आज कर लूँ. Next point, we are having the government policy. Taxation and subsidy policy of the government also impacts the market supply of a commodity. कहते हैं कि जो टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इससे मार्केट सप्लाई इम्पैक्ट होती है. अगर हमने टैक्सेशन को इंक्रीज़ किया, इससे क्या होगा, मार्केट सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी. और अगर हमने सब्सिडीज़ को वाइल इंक्रीज इन सब्सिडीज़ में इंक्रीज इट, और कहते हैं अगर हमने सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ किया तो वो इंक्रीज़ हो सकती है.